Good morning, children. Welcome to the class. And today we are going to start a new chapter, your political theory book, socialism. Before starting the chapter, we have to understand the basic concept of this socialism. First of all, what is a justice? न्याय किसे कहते हैं? Then we will understand we can say the types of justice are also there. जब हम न्याय की बात करते हैं, when we are talk about justice means हर चीज में उसको पर्सन को न्याय मिलना चाहिए, because we all are human beings. They have the same characteristics. They have the same characteristics. That's why we should also have equality in all spheres. And one more thing, justice should be also there. Justice means here access to resources. Justice means here rights, equal rights. Justice means here opportunities. Justice before the law. So there are a number of dimensions that we can say justice here. Justice is very important for all human beings, or we can say it is very important for any democratic country. न्याय क्यों जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है that justice and the relation of democracy is correlated. जहाँ हम लोकतंत्र में लोगों की बात करते हैं, लोगों के पीपल के पावर्स की बात करते हैं, जहाँ हम सबसे ज्यादा यूं कहा जाए कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन अगर किसी को देते हैं तो पीपल को देते हैं। अब हमने लोगों की पोजीशन को तो सबसे ऊपर रखा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उस कंट्री में अगर इक्वल जस्टिस नहीं मिल रहा तो वो देश कैसा होगा? वहां पर लोगों में पीपल जो होगा उनका जो है डिवाइडेशन हो जाएगा on the basis of we can say poor and rich, resourceless and resourceful person. So all these things are very necessary to understand socialism. अगर हम जस्टिस को समझ चुके हैं, जस्टिस में न्याय कैसे, और जैसे हमने कहा हमारी इंडिया के अंदर स्पेशली हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ डाइवर्सिटी, all sections of groups are there, and because of the social evils that were persisted before some years, the people were discriminated on many grounds. और इसी ग्राउंड के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले अनटचेबिलिटी अबॉलिश की, फिर हमने जो फ्री लिस्ट है उस वहां पर उन पीपल की फ्री लिस्ट को कैटेगरी SC ST में ओबीसी बनाए, रिजर्वेशन कोटा पॉलिसी अडॉप्ट। इन सारे मेथड्स को हमने यूज करते हुए क्या करने की कोशिश करी? जस्टिस लाने। जस्टिस हियर में सारी चीजों में उन्हें जस्टिस मिले, अपॉर्चुनिटी में मिले, उनको राइट्स में मिले, उनको सोशली मिले, इकोनॉमिक में जस्टिस मिले, इन ऑल स्फीयर। So this is the justice. Now we will move to our today's topic, which is social justice. Social समाज किन लोगों से मिलकर बना है? Society, it is formulated through many families. एक परिवार, बहुत सारे जो परिवार मिलकर उन्होंने एक समाज को इसलिए क्या कहते हैं? बिग फैमिली। और जो समाज में नहीं रहता, समाज से एक्सक्लूडेड है, उसे हम क्या कहते हैं? अरिस्टोटल से क्या हमें क्या कहे? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है ना? हम एक समाज में रहना हमारा जरूरी है, क्योंकि समाज का भी डेवलपमेंट किससे होगा? व्यक्ति से होगा। व्यक्ति का डेवलपमेंट किससे होगा? समाज से होगा। We are totally interdependent. We cannot separate it. We cannot separate it. And if a person who is separated from the society, the person cannot develop self. Because all the requirement, all the needs, we can say it is fulfilled through the society, and society also complete or it fulfill its needs through the people. समाज लोगों से बना है, लोगों से समाज बना है। This is clear.
So here we are just discussing about social justice. सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, समाज में न्याय की बात कर रहे हैं। समाज में न्याय की बात क्यों रखी गई, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशल जस्टिस क्या है वो बात करते हैं। इन अ सोसाइटी, इन अ कंट्री, देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज. These resources are all the people have equal right to access all these resources. This is the social justice, where you have the equal right, where you have the equal opportunities, where you have the right to access equally all the resources of the country. This is a social justice, where there should be no any discrimination on the basis of any ground. This is a social justice. ऐसा समाज, उसकी हम बात करें जहां पर सबको क्या मिले, हर चीज का जस्टिस मिले, हर चीज से उनका अधिकार मिले. That is, everyone deserves equal economic, political, social rights and opportunities. This is called social justice. Justice are, we can say, yeah, you already just we discussed about the political justice also, where the people should have equal right to vote. कि लोगों को वोट करने का अधिकार हो, वो क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है. सोशल जस्टिस मैंने आपको बताया. इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात आ जाती है. तो दीज नंबर्स ऑफ जस्टिस आर देयर, बट व्हाट वी विल डिस्कस टुडे थॉरली, सोशल. Now here there is in our mind, we can connect this justice with love. समाज में अगर हम लव और जस्टिस को देखें, दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है? What is the common thing in love and justice? The common thing is that both are positive aspects. Both have, we can say, they have the passionate with the people, incorporated in the society. दोनों का लोगों के साथ जुड़ाव है, समाज के लोगों के साथ जुड़ाव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका. इसलिए हमने लव और जस्टिस की बात की. जो व्यक्ति इफ अ पर्सन हु बिलीव इन लव, ही विल ऑटोमेटिकली बिलीव इन जस्टिस. न्याय की बात करें, एज अ ह्यूमन बीइंग we should believe in love and justice. If a person who is very, we can say, passionate, who is very, we can say, that are emotional, have a human beings all characteristics, always believe in justice. ऐसा नहीं कि वो केवल अपने जस्टिस की बात करेगा, वो जस्टिस की बात करेगा सब लोगों के लिए. ठीक है, दोनों सब लोगों के लिए मतलब कि पूरे कंट्री में जो पीपल हैं उन सब की जस्टिस की बात करेगा, नॉट ओनली टॉक अबाउट हिज ओन सेक्शन ऑफ द पीपल ओनली. अगर वो किसी कास्ट पे का है तो ऐसा नहीं कि वो अपने ही कास्ट के लोगों की बात करेगा, वो ओवरऑल पूरे कंट्री के जितने लोग हैं उनकी जस्टिस की बात करेगा. This is a, we can say that love and justice, these are both are very close to the society. But what is the difference between love and justice? दोनों में फर्क क्या है? We see that we love the people who are very close to us, like our relatives, like child loves her mother or his mother. So we say that love area, the area of loving the people, it is very confined. Because who are the people, they are close to us, they are relatives, we will love them. But on the other hand, when we talk about justice, justice is related to the whole society of the people. It's a large area. Confined, it is not a confined, but it is a broad area, we can say, where all the people incorporated in the society. जहाँ समाज के सभी लोग हों और समाज के सभी लोगों की हम बात करते हैं, उन सबकी जस्टिस की बात करते हैं. लव की कहाँ बात कर रहे हैं? जहाँ जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं. एक चाइल्ड अपनी मदर को लव करता है, मदर अपनी चाइल्ड को अफेक्शनेट करती है, इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ लव. बट ऑन द अदर हैंड जस्टिस, इट इज हैज अ ब्रॉडर मीनिंग हियर. Broader meaning here means in country we see that number of people resides in India, you know, that a large populated country, there we talk about justice. The diversity is also there. But in spite of that, we believe in justice. और हम उस जस्टिस को देने में बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं.
जहां उस जस्टिस को देने के लिए हमने कंट्री के जितने रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट्स को असाइन किया है, ये सब जस्टिस है। तो वी सी दैट इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग कि जस्टिस क्या है और लव। अब बात की क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाई वी नीड जस्टिस, जस्टिस की जरूरत क्या है। चलिए आप मुझे बताइए कि फैमिली में आप एक रहते हैं, ठीक है, आप एक कोई ना कोई किसी ना किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। उस फैमिली के अंदर अगर 2-3 किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, if they just start to fight or start to argue on any topic on any issue, ठीक है, अब उसमें क्या होती है कि आपका झगड़ा हो गया, आपकी मदर आई, आपकी मदर ने देखा लड़ाई हो रही है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो एल्डर होता है उसको एलिगेशन ज्यादा सहना पड़ता है और जो यंगर होता है वैसे ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, अपन सोचते हैं जो एल्डर है वो समझदार है और जो यंगर है वो उसको समझ नहीं है, तो गलती किसकी मानते हैं, एल्डर की। लेकिन होता क्या, अगर ये केसेस फ्रीक्वेंटली होते हैं अपने घर में, अगर इश्यूज जल्दी जल्दी होने लगते हैं, तो हमारे मन में बात एक ही बैठ जाती है कि देयर इज अ बायस नेचर ऑफ माय मदर और सम एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, कि उनका बायस नेचर के मुझे हमेशा एलिज किया जाता है, मेरे पे आरोप लगाया जाता है, छोटे जो भाई या बहन है उनको छोड़ दिया जाता है। तो वो उस जस्टिस की बात दिमाग में उसके आती है कि ये जस्टिस नहीं है, ठीक है। फैमिली से हमने एक छोटे स्मॉल यूनिट से इस चीज को उठाया ताकि आप जस्टिस को थोड़ा और क्लियर समझें। और अगर हम इसको अपनी कंट्री के जस्टिस की बात करते हैं, है ना, वहां पर जस्टिस जो है उसकी जरूरत क्यों है। We need justice to maintain a society. We need justice to maintain a law and order in the society. We need a justice to for the corporation, for harmony running of the society. समाज में समानता संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, इससे हमें जस्टिस की जरूरत है। Because especially I always give you example of our country. मैं अपने देश का हमेशा एग्जाम्पल के बताते हैं, क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री के अंदर लोग तरह तरह से जिसको कहते हैं डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है, उन सब में जस्टिस की बात, उन सब में बैलेंस की बात। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर एनी नेशन. In spite of that, we always talk about the government policies and programs is that we always elite our government. कि government ने ये नहीं किया, ये नहीं किया. Just think about that. Where a family is there, a small unit of the society, वहाँ पर भी जो है arguments और इस तरह की चीजें होती है. This is a big society. This is a big country there, where the number of people they reside together. In spite of that, you already read in your previous chapter where we see that our constitution gives the assurance and identity to all the people. They reside in any area. This is a justice. I have to correlate all the chapters with any chapter of this chapter of your book. Correlate करके पढ़ना है, previous chapters को भूलना नहीं है, क्योंकि all are interconnected. जहाँ हम राइट्स की बात करें वहीं पर जस्टिस है, जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहीं जस्टिस है। इक्वालिटी है तो जस्टिस है, इक्वालिटी नहीं है इक्वालिटी है। प्रीवियस चैप्टर यही था हमारा, जहाँ इक्वालिटी नहीं है वहाँ जस्टिस नहीं है। So all things you have to just keep in mind, correlate all the things, all the aspects. So why do we need justice? To maintain law and order, to the smooth running of the society. Now there is a question arises. What question arises? What is justice? What kind of justice? Justice कैसी? What kind of justice means? You know that diverse group of people are there. Some are rich, some are poor. Some believe that rich people justice क्या होगा? जो अमीर लोग हैं उनके लिए जस्टिस क्या होगा? उसके लिए होगा कि गवर्नमेंट जो है मार्केट को लिबरल कर दे, ठीक है। मार्केट के ऊपर लिबरल से, लिबरल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी तरह के टैक्सेस ना ले और बेनिफिट किसको मिले, इन प्रोड्यूसर्स को मिले। रिच जो पीपल हैं, डेवलप सेक्शन पीपल हैं, वो क्या चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा फायदा हो, उनके लिए जस्टिस वो है। वहीं अगर हम सोशलिज्म में, सोशल जो पीपल हैं सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, दे बिलीव कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है कंट्री के, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उनके लिए वो जस्टिस है। तो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस? आपके लिए जस्टिस कुछ और है, मेरे लिए जस्टिस कुछ और है। आपके इश्यूज को अगर कोई सॉल्व करता है तो आपका जस्टिस बोल,
और मेरे इश्यूज को कोई सॉल्व करेगा तो मेरे लिए जस्टिस तो है। इफ द थिंग्स आर इन फेवर ऑफ मी, आई विल से दिस इज जस्टिस। आपने देखा कोर्ट में केसेस होते हैं, ठीक है, अब एक जो ट्रायल होता है एक के पक्ष में जाता है और एक के फेवर में नहीं जाता, विपक्ष में जाता है। तो जिसके फेवर में नहीं गया उसको लगेगा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, और जिसके साथ हुआ मतलब उसके फेवर में गया तो कहेगा जस्टिस है। हमारी कंट्री में तो बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी कंट्री में तो बहुत ही लॉ सिस्टम जो है जुडिशरी बहुत ही जिसको कहते हैं अनबायस्ड तरीके से काम करती है। तो दिस इज द वी कैन से पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल। लोगों का सोचने का, लोगों का देखने का नजरिया सबका अलग अलग है, बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट। हमारे रहने का, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी अलग। यू आर ए चाइल्ड, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए मदर, मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा जस्टिस से। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल कि जस्टिस को यूं कहा जाए कि सब पीपल इक्वली एग्री करें कि व्हाट इज जस्टिस। So there is the argument between different philosophers. Philosophers here, Greek philosophers. You also heard about Plato, Socrates, Aristotle. We will talk about all these things. उन्होंने जो डिस्कशन किया, उनका जो एक डिबेट हुआ, जिसको उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज और अपनी बुक्स में लिखा, उस जस्टिस को, सोशल जस्टिस को सबने एक्सेप्ट किया। उस सोशल जस्टिस की आज हम बात करेंगे। व्हाट इज जस्टिस देन? हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से मतलब एक क्वेश्चन से छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस। अमीरों के लिए, अगर जो रिच पीपल के लिए हमने उनके फेवर में कहा तो उनके लिए वो जस्टिस है, और जो सोशली जो बिलीव सोशलिज्म में बिलीव करते हैं उनके लिए वो जस्टिस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली सोशल जस्टिस है क्या? तो डिफरेंट फिलोसफर they gave their different theories, different ideologies on social justice. Let's just see what are these. So first of all, अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाए, आपने बहुत महान अशोक का नाम सुना होगा, एक हमारे एम्परर रहे हैं, ठीक है, मौर्य एम्पायर के। वो एम्परर अशोक पूरी कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में जिसको कहा जाए, उन्होंने अपनी टाइटल्स को बढ़ाया नॉर्थ टू साउथ। उनका जो न्याय था, वो जिस तरह के राजा थे शायद कभी कोई और नहीं। तो उस समय हम अगर मोनार्की सिस्टम था इंडिया में, तो हम राजा से ये आशा करते थे कि वो दैट द किंग, कि राजा कैसा होना चाहिए, जो न्याय प्रिय हो। अगर आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में सोशल स्टडीज में, आपके लेसन है उनमें मौर्य एम्पायर के बारे में है, जिसमें अशोक को क्या कहा, देवनाम प्रिय। अशोक को क्या कहा, न्याय प्रिय, न्याय, जस्टिस, सोशल जस्टिस। कहने का मतलब यह है कि at that time depends on the situation of the country and system of the political system of that country. हमारे यहाँ मोनार्क सिस्टम था, इसलिए हम किससे जो है होप रखते थे कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, जो बिलीव करे धर्म में। तभी तो मैंने आपको अशोक का एग्जाम्पल दिया, जितना अशोक के बारे में कहा जाए उतना कम। वो धर्म चक्र चलाया, धर्म यात्राएं उन्होंने की। तो एक ऐसे राजा की हम आशा करते हैं जो सबको एक सामाजिक न्याय, समाज के अंदर न्याय ले जाए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिले, और किसी ने सही किया है तो उसको रिवॉर्ड मिले। ये भी एक बहुत कन्फाइंड थियरी है कि पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कई बार इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव द पनिशमेंट टू एनी पर्सन हु कमिटेड एनी क्राइम। नहीं, इट इज नॉट वेरी एसेंशियल। समटाइम कि आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते। तो ये हमारी एंशियंट सोच थी, हमारी पहली प्राचीन सोच थी कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, न्याय के लिए, धर्म में विश्वास करने वाला होना। सेकेंड, आपके इसमें थोड़ा सा जेएस मिल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, इन्होंने भी अलग अलग जो है जस्टिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी। इन्होंने सोशल जस्टिस के बारे में क्या, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा
कि जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग डिफरेंट पीपल्स दे लिव टुगेदर। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब क्या है, यहाँ पर लो कास्ट पीपल, हाई कास्ट पीपल दे लिव टुगेदर। बट what is the social justice here? That equally these descending people, means low caste people, they should enjoy all types of resources, access to all resources. This is the justice. This is the social justice for low caste people. Because why we talked about these low caste people here? Because you everybody know क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें जो है सोशल जो रिसोर्सेज उनका यूज नहीं किया करते। तो उनके लिए सोशल जस्टिस क्या था कि इन सबको इक्वली एक्सेस होना दिया जाए, रिसोर्सेज को लेने दिया जाए। बी आर अम्बेडकर जो है वो ऐसा मानते थे। अलग अलग फिलोसफर्स थे, अलग अलग जो हमें कहते हैं पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने डिफरेंट अपनी थ्योरी। अब हम एक बात कर रहे हैं चाइना में, जिसको कहते हैं कि कन्फ्यूशियस जो है बहुत ही उनकी, कई लोग तो उनके अभी भी फॉलोअर है। जो उनकी जो थ्योरी थी कन्फ्यूशियस की, वो थ्योरी क्या थी, वो कहते थे सोशल जस्टिस क्या है। मैंने जो अभी पहले अभी बताया, उनके अकॉर्डिंग सोशल जस्टिस है कि किसी ने अगर गलत किया है तो उसे पनिश किया जाए, और किसी ने सही किया है तो उसके रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने सोशल जस्टिस का एक एरिया, कंफाइंड एरिया बना दिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा किया जाए। बट all the, we can say, philosopher of the nation, they were not agreed on it. We can say कि वो वहां उस जहां पर उन्होंने अपनी फिलोसफी दी, उस कंट्री के लिए हो सकता है और अनदर कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, और अनदर के लिए। दैट्स व्हाई ये जो डिस्कशन चला सोशल जस्टिस क्या है, कैसा होना चाहिए, ये आगे और डिबेट में आया। इससे पहले कि मैं आपको डिबेट का डिस्कशन करूं, मैं आपको कुछ सोक्रेटिस और प्लेटो के बारे में बताऊंगा। देखिए, सुकरात कौन थे? सुकरात जो है ग्रीक फिलोसफर, यूनान में उनका जन्म हुआ था। बहुत गरीब थे, रिसोर्सेज की तो हम बात ही नहीं कर सकते थे, 2 स्क्वायर ऑफ मील्स भी उनके लिए मुश्किल था। उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी, घर में 2 टाइम का खाना भी नहीं बनता था, पढ़ाई तो बहुत दूर थी। लेकिन जो सुकरात, जो सोक्रेटिस थे, उनका जो जन्म था वो ईसा पूर्व यानी से अपन कहते हैं ना एडी और बीसी चलता है, बिफोर जो क्राइस्ट जो टाइम है उनसे भी पहले रहा, और ऑलमोस्ट मान लीजिए 2500 कुछ साल पहले उनका बर्थ हुआ था। वो इतने गरीब थे कि कुछ मतलब दे ऑल लैक ऑफ रिसोर्सेज वर देयर, तो एजुकेशन की बात नहीं हो सकती थी। वहां पर एक पर्सन आए जिसमें उन्होंने सुकरात में, सोक्रेटिस में कुछ टीचर्स देखे, तो उन्होंने उनको पढ़ाने का जिम्मेवारी उन्होंने ली। जैसे जैसे सोक्रेटिस ने पढ़ना स्टार्ट किया, नॉलेज तो थे ही वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उनको चीजें समझ में आने लगी। उस समय क्या था कि वहां पर ग्रीक में, एथेंस में हुआ था उनका जन्म, वहां पर मोनार्क सिस्टम था, और जो राजा जो होता था कि हर चीज को, जैसे कहते हैं ना, राजा ने अगर कोई चीज कह दी कि ये चीज होनी चाहिए, तो वो एक लॉ बन जाता था, ऑर्डर बन जाता था। ठीक है, मीन्स द पीपल्स व्यूज वर नॉट जस्ट आर्ग्ड बाय देम, सब चीजें जो है ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द किंग। जैसे जैसे सोक्रेटिस बड़े हुए, उनमें आर्गुमेंट, रैशनैलिटी बढ़ती रही। लोगों से वो बातचीत करते थे, आर्गुमेंट करते थे, तो वो कहते थे कि जो एक राजा है उसको कैसा होना चाहिए, उसको जस्टिस में बिलीव करना चाहिए, सोशल जस्टिस में पीपल को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। इस तरह के उनके यूँ कहा जाए कि बहुत ही मॉडर्न विचार थे उस समय, और उनकी बात जो है वो कई लोग दूर दूर से सुनने आते थे, और उनको अच्छा लगता था कि हाँ ये रैशनैलिटी है, अगर हमें कोई काम करना है तो रैशनल होके करना है। सोक्रेटिस के फॉलोअर्स बढ़ते गए, ठीक है, यंग जनरेशन स्पेशली, और सोक्रेटिस जो है अपनी बात को इतने तरीके से रखते थे कि सब उसके उस चीज को वो एग्री करते थे। ठीक है, सोक्रेटिस के डिसाइपल प्लेटो थे। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बात करने वाली हूँ, प्लेटो की भी बात करेंगे। तो जो सोक्रेटिस की छोटी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि सोक्रेटिस का सोशल जस्टिस से क्या कनेक्शन था।
सोक्रेटिस क्योंकि वो ऐसा समाज चाहते थे जहाँ जस्टिस हो, जहाँ सब लोगों को जस्टिस मिले। वहां पर वो राजा कैसा चाहते थे, धर्म को फॉलो करने वाला, जस्टिस को फॉलो करने। तो उस समय जो वहां पर किंग था वो राजा का फॉलोवर, किंग जो था वो सोक्रेटिस का फॉलोवर हो गया, सोक्रेटिस की बात को मानने लगा और सब ठीक होने लगा। जब किंग की डेथ हो गई तो उनका सन जो है वो उस गद्दी पे आया, स्ट्रॉन पे आया। लोगों ने उसको जो है, जो बहुत, जिसको कहते हैं ना स्कॉलर पीपल थे वहां पर, और बहुत रिनाउंड थे और बहुत प्रिविलेज्ड पीपल थे, दे स्टार्टेड टू कि उनके खिलाफ जो है भड़काना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ सोक्रेटिस, सोक्रेटिस को के ऊपर एक ट्रायल चलाया, ठीक है, एक मुकदमा चलाया सोक्रेटिस के। क्या मुकदमा चलाया कि ये यंगर जो जनरेशन है उनको भड़का रहा है, मिसलीड कर रहा है और देशद्रोह कर रहा है, ट्रेजन, इस तरह से 3-4 एलिगेशन लगाए गए और उनको जेल में डाल दिया। उनको, उनके साथ उसके दो तीन डिसाइपल्स भी थे जो पूरी तरह से उनके फॉलोअर्स थे। जब उनके ऊपर ट्रायल चला तो उन्होंने, जो वहां का जो जेलर था, है ना, जो जब उन्हें जेल में डाला गया वहां का जो जेलर था वो भी उनका फॉलोअर था एरिस्टोटल का। एट दैट टाइम की बात, सिस्टम क्या था कि अगर वो पर्सन जिस पर ट्रायल चल रहा है प्रूव्ड द गिल्टी, तो उसको क्या क्या दिया जाता था, जहर दिया जाता था, पॉइजन। तो पता ही था कि सारा कुछ एरिस्टोटल के बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में जब एरिस्टोटल का ट्रायल प्रूव हुआ कि उनको गिल्टी जो है वो प्रूव हो गया कि गिल्टी, कि इन्होंने जो है देशद्रोह किया है, लोगों, यंगर जनरेशन को मिसलीड किया है, राजा को जो है उन्होंने जो है उनकी यूं कहा जाए उनके लैंड को गिराया है, इस तरह की कई, तो वो प्रूव्ड हो गया। तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो चाह रहे थे कि इनको यहाँ से जेल से भगा दिया जाए, लेकिन जो एरिस्टोटल थे, he believed in truth, he believed in, we can say, soul, एक स्पिरिचुअल सोल थे वो। एक जो बॉडी है, डिड नॉट बिलीव इन, वो कहते हैं बॉडी तो क्या खत्म होनी ही है, लेकिन मेरी जो सोल है वो हमेशा तुम सबके साथ रहेगी और सही, तुमको सही जो है साथ कर लेकर जाएगी। तो इस तरह से सोक्रेटिस ने जो है वो जहर पी लिया और उनकी डेथ हुई। लेकिन सोक्रेटिस के जो विचार थे, है ना, जो उनके आइडियोलॉजी थे वो प्लेटो ने आगे बढ़ाया। प्लेटो उनके डिसाइपल थे और यूँ कहा जाए कि एक रिजेंबल थे बिल्कुल, जैसे अरस्तु मतलब नहीं थे, सोक्रेटिस नहीं थे, तो प्लेटो को माना जाता था कि ये एक जीवित अरस्तु है, यानी ये लाइव अरिस्टोटल है, इतना रिजेंबल था। तो एरिस्टोटल का सोशल जस्टिस के ऊपर जो व्यू है वो मैं आपको बताऊंगी क्या थे। एक उनकी, मैंने आपको स्टोरी बताई कि सोक्रेटिस कौन थे। प्लेटो जो थे, और प्लेटो के जो डिसाइपल थे वो एरिस्टोटल, अरस्तु, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे। प्लेटो जो थे वो उनके डिसाइपल थे और सुकराटिस, सोक्रेटिस के। उनके बाद उनकी जो सोच, उनकी एक बुक बहुत फेमस, दी रिपब्लिक, द रिपब्लिकन, उनके अंदर उन्होंने अपने 3-4 लोग और थे, डिसाइपल्स थे उनके साथ, उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि सोशल जस्टिस क्या, उनका मानना क्या था। द रिपब्लिकन कहता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग में एक मॉरलिटी होती है, मॉरलिटी यानी नैतिकता। उस मॉरलिटी के हिसाब से हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए। That you are a student, you should fulfill your duty. I am a teacher, I should fulfill my duty. That I should impart my students very good knowledge with content. And student's duty is to read properly, timely send homework, and all that. There are so on. We can say duties are also there. तो जो प्लेटो थे वो ये मानते थे कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड उनके अंदर मॉरलिटी क्या है, नैतिकता है। उस नैतिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना। अगर वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो उससे क्या होता है। देखो, प्लेटो 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं। एक करते हैं इंटेलेक्चुअल, एक करते हैं स्पिरिट, ठीक है, एक करते हैं आत्म संयम जिसको कहते हैं, है ना, ये और एक बात करते हैं
करेज की, 4 एलिमेंट्स की उन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि अगर इन चारों एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए, कैसे जोड़ेंगे? हमने ये बात कही कि एक जो राजा होता है उसके अंदर कौन सा फीचर होना चाहिए? एक जो राजा होता है उसमें एक बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें एक विवेक होना चाहिए। सैनिक जो सोल्जर होता है उसमें साहस होता है, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? आत्मसंयम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर इन सबका ये सब चीजें आपस में मिल जाती हैं तो सोसाइटी कैसे बनेगी? ग्रेट सोसाइटी में, आइडल सोसाइटी में। उससे केवल यही नहीं, हमारे आपस के जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लेटो की विचारधारा क्या थी? प्लेटो की विचारधारा थी कि राज्य यानी स्टेट को कैसा होना चाहिए? एक ऐसा स्टेट होना चाहिए कि उसको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि वहां पर सब कुछ अच्छा, आइडल हो सब कुछ। वो एक राज्य को चाहता है, कि स्टेट को चाहता है कि ऐसा स्टेट हो जहां पर सब कुछ आदर्श हो, सब कुछ अच्छा हो। समझ लीजिए, राजस्थान स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। अगर हमारी गवर्नमेंट सारी ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दे सबका डेवलपमेंट हो, तो मुझे बताइए कि क्या कोई डिस्प्यूट होंगे, कोई स्ट्रगल होंगे, या कोई एक्सरसाइज होंगे? नहीं, वो आइडल हो, वो आइडल स्टेट होगा। इसलिए प्लेटो की जो सोच थी वो क्या थी? एक आइडल स्टेट की थिंकिंग थी उनकी, और वो उसी पे वर्क करते रहे। नाउ इट शिफ्ट टू सोक्रेटिस। प्लेटो की विचारधारा मैंने आपको बताई। अब हम सोक्रेटिस की बात करते हैं। कुछ लोगों ने सोक्रेटिस से पूछा कि न्याय क्या है, तो सोक्रेटिस ने बहुत ही अच्छा इसका जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अगर हम सब लोग एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और केवल हम अपने ही बेनिफिट्स की बात करें, केवल हम अपने ही रिसोर्सेज को या अपनी नीड्स को फुलफिल करने की बात करें, क्या जो रिसोर्सेज है उसको मैनिपुलेट करें फॉर ओनली आवरसेल्फ, तो वो कंट्री या वो देश कैसा होगा? वहां पर न्याय नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं होगा। सोशल जस्टिस की जहां सुकरात बात करते हैं, सोक्रेटिस बात करते हैं, वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल जस्टिस होना चाहिए डूइंग गुड विद अदर्स, सब लोगों के साथ अच्छा करो, बट इट डज नॉट मीन दैट हार्म टू एनिमीज, कि जिसको आप जानते नहीं या किसी वजह से वो आपके एनिमीज है तो उनके साथ बुरा करो। ये सोशल जस्टिस नहीं है। तीसरा क्या है कि only you pursuing your only interest, it is also not social justice. What is the social justice here? सब कुछ अच्छा, you should do good with others, all equally. Not only pursuing your interest, you should keep in mind the others' interest also. दूसरे लोगों का भी ध्यान रखें। जैसे हम कहते हैं ना, एक डॉक्टर होता है, वो अपने पेशेंट को कैसे करता है? सब पेशेंट का एक जैसा ध्यान रखता है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, सबकी बीमारियां अलग होती है। इन स्पाइट ऑफ दैट, वो डॉक्टर जो होता है इज वेरी केयरफुल टुवर्ड्स हिज पेशेंट। सेम द सोक्रेटिस बिलीव द गवर्नमेंट एंड स्टेट शुड बी लाइक दैट, they should also believe in the ideology of social justice. वो सब इक्वल, वेल-बीइंग, सोशल जस्टिस में वेल-बीइंग ऑफ ऑल द पीपल, जहां पर सब लोगों की सोच, सब लोगों की भलाई की सोच गवर्नमेंट और उसमें होनी चाहिए। तब जाके हम बात करते हैं कि उस स्टेट में सोशल जस्टिस की बात, कि सोक्रेटिस बिलीव कि गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? डॉक्टर की तरह होना चाहिए, जहां वो अपने पीपल को सबको कैसे कैसे करे, टेक केयर कर। और एक और फिलोसफर हुए हैं, वो है इमैनुअल कांट, जिन्होंने सोशल जस्टिस की बात की। उनका ऑल ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑल इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, so that's why that naturally the resources which are available in our society, it should be given to all equal. All human beings are dignified people. हम सब समान ही, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। छोटे बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप 4-5 रिलेटिव्स के सामने उसकी अगर आप कोई बात कर दें तो आपको बाद में जाके कहेगा आपने ये बात क्यों बोली, एग्जैक्टली राइट। और वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है।
कि मेरी जो पर्सनल चाहता है वो भी शेयर हो. Same thing is that all are dignified people. They are belonging to different, whether they are belonging to different sections, poor, women, children, gender. What is the gender of that? But all are dignified. So that's why, because all are dignified people, because of their dignity, Animal Khan, they believe they should give their dues. Dues मतलब कि उनको उनकी डिग्निटी के हिसाब से उनका ड्यू मिलना चाहिए. यहाँ पर ड्यू से मतलब क्या है? ड्यू से मतलब हाउ वी विल डिसाइड कि उसको क्या देना है, उसको क्या देना, हाउ वी विल डिसाइड. ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री का सिस्टम, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी means to give equal opportunity, give opportunity to develop their talent. Means here once again we will move to the previous chapter, equality की जहाँ हमने इक्वालिटी की बात की, वहां पर क्या मतलब हो गया? उस इक्वालिटी का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल द पर्सन. इफ अ पर्सन हैव अ क्वालिटी और टैलेंट, तो वो अपनी उस स्थिति से अपने आप बाहर आ जाएगा. उसको वो मिलेगा जिसका टैलेंट है. एनिमल कान ही बिलीव इन दिस कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर डिग्निफाइड पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे कि क्या हो, उसका टैलेंट है, अगर उसमें टैलेंट है, अगर उसमें पोटेंशियलिटी है, तो उस एम को जरूर इन द लास्ट ही विल अटेन दिस एम और गोल. So through all the discussions, we come to know what is the social justice here. In a sum up, we can say the social justice here means to the argument of Socrates, Plato. In all the, I can sum up this through that every person of a nation, the person is dignified person. So that's why the dignified person should fulfill some duties towards the nation. Should also do good for all the persons equally, and the countries also provide the same opportunities or equal opportunity to all the persons to develop their talent and brilliance to achieve their goals. This is a social justice without any discrimination. The discrimination in here means on many grounds, like the color, caste, gender, race. So today's topic, what we discuss here, social justice through the philosophy of different philosophers, and there is a rationality is also that what is social justice, how we can give social justice to all. Tomorrow we will discuss the next topic of this chapter. Till then, have a good day.